I'm all good. Excited to meet you guys. Okay, that's pretty good. So can you just help me with your quick introduction so all can have a join with you and have a look on you? Sure. So, I'm a final year student from JP Institute of Information Technology, and I've been into competitive programming for about 3 years. I was one of the finalist team in the SIH, and yes, of course, I was part of the LinkedIn Coachland SRE program. So, it's been a good journey so far. That's great. So can you just help me out? Like everyone wants to know, like what's your experience regarding like coaching, like what's all they do and experience regarding LinkedIn coaching program. Okay, so the LinkedIn Coachland program is basically a 3 months curated program, especially for the programmers, like the ones who have been selected. And in the program, you get a mentor each. And the mentor is currently an SRE or an SD currently in LinkedIn. And so you get the one on one mentorship from that experienced guy or the whoever is being assigned on you. And then the whole program is basically divided into four sections. So just the first part is the Linux system, the second is the DBMS part, where they teach you the database, mostly MySQL. Then the third part is where the Python and the Flask apps come into picture. Then fourth part is the networking part, wherein you study about networking. So like all these domains are not very popular either in colleges or in any other mentee program, but they have curated it in such a way that you get an overall idea of what an SRE or an SD actually does in a tech giant. So by tech giant, I'm talking about companies like LinkedIn and FANG, which operate काफी बड़े तरीके से. तो इनके अंदर हाउ डज द टेक स्टैक और जो आप डाटा स्ट्रक्चर सीखते हो वो कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, उसका आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल जाएगा. पूरा आपको डिटेल्ड वो. और जो है बीच बीच में दे विल गिव यू असाइनमेंट्स, and after each section there's a project. So your GitHub will be heavily benefited because you'll be posting a lot of repos regarding your projects या जो भी वो जितना भी उनका पूरा डिजाइंड होता है. एंड nonetheless you get the idea of कि भाई प्रॉपर मेंटरशिप जो है उनसे लेना, बिकॉज दे आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री. तो उनके साथ द ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस आर टू गुड. और उसके बाद जो है देयर आर लॉट ऑफ सेशंस बीच में, जैसे यू गेट डेमो इंटरव्यूज. देन देयर वाज, आई रिमेंबर व्हेन मेरा प्रोग्राम चल रहा था, देयर वाज अ 2 hour सेशन अबाउट काफका, व्हिच इज देयर इंटरनल टूल Okay. डेटाबेस का. तो ऐसे इट इज अ लॉट ऑफ लाइक यू विल गेट टू एक्सप्लोर अ लॉट मोर देन व्हाट यू आर डूइंग इन करंटली योर कॉलेज, या फिर खुद से या थ्रू योर सीनियर्स. ओके, सो लाइक बेसिकली वी कैन से कि एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल जाता है हमें कि चीज़ें किस टाइप से कंपनी में वर्क कर, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस लाइक थ्योरी थ्योरी तो सीख लेते, दे जस्ट हेल्प इन द प्रैक्टिकल डेमोज. हाँ, मतलब जो है हम यूजुअली अपना कॉलेज लाइफ में वैसे क्या डाटा स्ट्रक्चर सीख लिया, कोड कर लिया, सीपी साइड ओरिएंटेड रहते हैं, तो इससे क्या है, यू विल गेट एन ओवरऑल आइडिया कि एसडी में सिर्फ इतना कोड नहीं है, कोड कहाँ इम्प्लीमेंट होगा, कैसे होगा, उसके साथ और कंपोनेंट्स जुड़ेंगे तो द बिगर पिक्चर क्या बनेगी. So like Bhavya, can you just help us with like what is the test process and what are the strategies and what you have done for the preparation for cracking it this? ओके, सो जैसे जब इसका कोचलिन खुलता है तो देयर इज अ ह्यूज मतलब शोर मच जाता है, एवरीवन नोज दैट द फॉर्म्स आर आउट. तो द फर्स्ट पार्ट इज, मतलब अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, देन द फर्स्ट पार्ट इज दैट यू गेट अ टेस्ट इनवाइट. और यूजुअली टेस्ट हैकर रैंक पे ही होता है. इट इज़ अ 120 मिनट्स टेस्ट. तो वो जो टेस्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. द फर्स्ट पार्ट इज एन एमसीक्यू राउंड. तो यू विल गेटिंग अराउंड 20 MCQs, जो कि जो है आपके लाइनेक्स सिस्टम पे बेस्ड होंगे, आपका डेटाबेस पे बेस्ड होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड होंगे, नेटवर्किंग पे बेस्ड होंगे. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इंसान कोड करता है विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस. तो आपको थोड़ा प्रायर पढ़ना पड़ेगा लाइनेक्स सिस्टम के बारे में, आपको बेसिक कमांड्स पता होनी चाहिए कि क्या कमांड जो है लाइनेक्स सिस्टम पे क्या करती है, या नेटवर्किंग कैसे काम करती है, टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस. तो थोड़ी प्री स्टडी चाहिए होगी उन 20 क्वेश्चंस के लिए. तो द सेकेंड पार्ट इज द कोडिंग राउंड. सो द कोडिंग राउंड में क्या है, यूजुअली 2 क्वेश्चंस आते हैं.
और उनका मतलब टॉपिक्स जो है एरे, आपका स्ट्रिंग, स्टैक्स, यू शुड बी फेमिलियर विद प्रायोरिटी क्यू, मैप्स, इनकी यूसेज अच्छे से आनी चाहिए। मतलब अगर आप लीड कोड वाइज कहो तो लीड कोड ईजी और मीडियम ही आता है। ओके। मतलब यू कैन नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि यू विल नॉट बी एक्सपेक्टिंग जो है ट्री या ग्राफ या डीपी इस टाइप के टॉपिक्स आप एक सेकेंड ईयर से एक्सपेक्ट नहीं करते, और वो भी नहीं करते। तो रेंज इजी मीडियम ही रहेगी, पर ये है कि थोड़ी थरो अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एज इट इज कोई क्वेश्चन दे देंगे या फिर जो है सीधा डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कंसेप्ट वही है, बट गुड इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होगी थोड़ी। एंड द थर्ड पार्ट इज we have to write an essay as to why do you think you are fit for this program, ओके। like what मतलब how do you stand out. तो दिस इज अ सेशन जो कि यू कैन प्री प्रेप, क्योंकि बाकी दोनों सेशन के लिए तो इट इज स्टडिंग, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा हाँ। एंड वहां पे यू हैव टू इम्प्लीमेंट। पर दिस सेशन इज जो आप थोड़ा प्री प्रेप कर सकते हो, जैसे आप जो है यू कैन स्टार्ट विद योर बैकग्राउंड एज टू आपकी एजुकेशन क्या है, देन यू कैन राइट योर करंट स्किल्स जो कि आपने ओवर कॉलेज अपने क्लब्स में या क्लासेस के थ्रू या सेल्फ लर्निंग से आपने एक्वायर किए हो, यू मतलब प्रॉपरली मेंशन करो अपने स्किल्स। देन शो अ डिजायर कि भाई यू आर रेडी टू लर्न, ग्रो, जो है यू आर अ फास्ट लर्नर, और कि हाउ दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू, कि मतलब यू वांट टू एक्सप्लोर द ओवरऑल क्वालिटीज एंड स्किल्स ऑफ एन एस डी एज वेल एज एस आर ई। तो आपको अपनी थोड़ी विलिंगनेस दिखानी पड़ेगी। मतलब यू कैन इजीली अपना फॉर्मुलेट कर सकते हो पॉइंट्स प्री में, ताकि वहां पे जो है यू गिविंग लेस टाइम टू दिस सेक्शन एंड मोर टाइम टू एमसीक्यूज एंड द कोडिंग क्वेश्चंस। वैसे तो कट ऑफ जो है वो हर साल वेरी करता है, ओके। पर मैंने यूजुअली देखा है कि फॉर दिस टू मतलब क्लियर द नेक्स्ट राउंड, यूजुअली कोडिंग क्वेश्चंस आपको 100% एक्यूरेसी से कर लेनी चाहिए, और दो तीन चार क्वेश्चन का एमसीक्यू में यू कैन टेक अ मार्जिन कि चलो दो तीन चार गलत हो गए, द रेस्ट इज गुड। बाकी अपना कोचलिन आंसर तो इज यूनिक फॉर एवरीवन, बट थोड़ा बेसिक फॉर्मेट बस फॉलोड होना चाहिए, और बहुत लंबा ना लिख दो आप। भव्य बेसिकली हमारे पास क्वेश्चंस क्या आते हैं कि हम लोग किस में कोड करें, मतलब जावा में करें या फिर पाइथन में करें, मतलब बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं कि हमें तो सिर्फ पाइथन आती है, सो देर आर ऑप्शंस रहते हैं क्या हमारे पास कि लाइक हम सी प्लस प्लस में भी कर सकते, सो एनी लैंग्वेज बैरियर पार्ट इन दैट? नहीं नहीं, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, कुछ अराउंड 17-18 लैंग्वेजेस का ऑप्शन आप पास होता है। ओके। तो आपको जो है किसी में भी आप कोड कर सकते हैं, चाहे सी प्लस प्लस हो, जावा हो, सी शार्प हो, किसी में भी कोड कर सकते हो, लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं आता। Okay, so like, can you just tell me like how this program help you in boosting your careers? Like, you have got enroll and how you have boosted yourself in 2 years like after that program. एक तो कि जैसे बिफोर लिंक्डइन कोचलिन Hmm. थोड़ा मतलब आई वाज मोर कंसंट्रेटेड टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, Hmm. और आपका डाटा स्ट्रक्चर्स लीड कोड कर लिया, वहाँ क्वेश्चन सॉल्विंग कर लिए। थोड़ा जनरल नोशन ऑफ कॉलेज रहता है कि सब कर रहे होते हैं एक्चुअली। Hmm. आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग चल रही है, कोडिंग साइड चल रही है, बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर्स चल रहा है। तो दिस प्रोग्राम जो है ना आपको थोड़ा डेवलपमेंट भी दिखाएगा, यू विल गेट टू नो नेटवर्किंग भी। उसके बाद जो है आपको थोड़ा पाइथन स्क्रिप्टिंग करोगे, ऑटोमेशन, बैश स्क्रिप्टिंग, ये सब जो है कॉलेज बच्चों ने ना किया होता है ना सुना होता है। तो थोड़ा आपको एक तो न्यूअर स्किल्स आएगा, थोड़ा आपका होराइजन बढ़ जाएगा। प्लस जो टॉप नॉच कंपनीज है यूजुअली उनके चाहे एस डी इंटरव्यूज हो चाहे एस आर हो, उनमें नेटवर्किंग के क्वेश्चंस पूछते हैं। मतलब आपको एक सिनेरियो में कर देते हैं कि स्केल करो इस प्रोडक्ट को या इस वेबसाइट को, या नेटवर्किंग का कुछ आप बताओ। तो तब जो है जो बंदे सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर्स कर रहे होते हैं ना, वो थोड़ा कहीं ब्लैंक चले जाते हैं, उनको थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस लगने लग जाता है। पर थोड़ा पार्ट्स ऑफ ऑल ऑफ दिस जो है इट हेल्प्स इन योर इंटरव्यू एज वेल, और फाइनली न्यूअर स्किल्स तो ऐड हो ही रहे हैं। So like Bhavya, you are the I think SRE like site reliability engineer. So difference क्या आता है हमारे पास like there's a जब हम exam देते हैं like the test SD for the SRE. So different questions रहते हैं या फिर the things are same for both? वैसे तो कोडिंग क्वेश्चंस तो दोनों में सेम रहते हैं, Okay. आपका लास्ट पार्ट भी सेम रहता है। जो एमसीक्यूज हैं वो थोड़े वेरी कर जाते हैं, थोड़ा एसडी डोमेन में जो है आपका डेटाबेस पे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, इस साइड पे थोड़ा नेटवर्किंग और लाइनेक्स की कमांड ज़्यादा आ जाती हैं, उस साइड पे थोड़ी लाइनेक्स कमांड्स कम आती हैं।
पर यूजुअली जो पेपर है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है, सिर्फ एमसीक्यूज थोड़े वेरी करते हैं। ओके सो भव्या लाइक हम लोगों ने लाइक जैसे टाइम लेट तो सो एज यू रजिस्टर्ड सो कितने दिन में टेस्ट की हमारे पास लिंक आ जाएगी एंड व्हाट ऑल द डेज वी एक्चुअली हमारे पास जैसे कि लिंक आ गई है वी नीड टू रजिस्टर सो हमारे पास प्रिपरेशन के लिए कम डेज है सो एनी टिप्स फ्रॉम योर साइड सो हम लोग बूस्ट अप कर सके उस चीज़ को। वैसे तो मेजर टिप तो ये है कि लास्ट पार्ट के लिए प्री प्रेप कर लो अच्छे से, अपना आंसर फॉर्मुलेट कर लो। फर्स्ट जो एमसीक्यू पार्ट्स हैं वो भी जो है आपको मतलब थोड़ा भी इफ यू स्टडी तो आपको एमसीक्यूज समझ आने लग जाएंगे। तो आप 2-3 दिन में थ्योरी रिवाइज कर सकते हो क्योंकि एमसीक्यू बेसिकली थ्योरी है। बाकी कोडिंग के लिए तो 2-3 डेज के अंदर अंदर ऐसा मैं नहीं कह सकती कि यू कुछ ये सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लो कि हो जाएगा। थोड़ा उसके लिए प्री काम करना पड़ेगा। पर फर्स्ट और थर्ड सेशन ऐसे है जो आपको आफ्टर कॉल भी अगर आप देखो तो यू कैन कवर 60-70% ऑफ व्हाट ऑल इन इज देयर। बाकी थोड़ा अपना क्वेश्चन सेकंड पार्ट के लिए कोड के प्रैक्टिस करते रहोगे तो ओवरऑल यू नो विल हैव अ गुड पेपर, ताकि जो आपको नेक्स्ट फोन स्क्रीनिंग का कॉल आ जाए। Okay, so Bhavya, like that's it. If you want to share anything from your side, like you can something from your side. आई एम होपिंग कि यहाँ पे जितने भी मीट में हैं सब दे आर फर्स्ट ईयर्स एंड सेकेंड ईयर्स। तो दिस इज़ योर प्राइम टाइम यू नो टू एक्सप्लोर अपनी जितनी भी फील्ड्स हैं, अपना डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, फ्लास्क ऐप्स, डाटा स्ट्रक्चर्स, मतलब सारे डेवलपमेंट और कोडिंग जो है ऑल डोमेन्स ट्राई करो, ब्लॉकचेन, जस्ट टू सीक यू नो आपको किस में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। बट कीप इन माइंड कि जब कंपनीज जो है हायर करती है फॉर इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यूज लेती है हायरिंग के, तो उनकी प्राइम रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी कि द पर्सन नोज हाउ टू कोड, उसको डाटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, उसको नेटवर्किंग आती है। तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि इसको छोड़ दो और जो है सिर्फ बाकी कुछ पसंद आ गया तो उसी को करते रहो। ऑलवेज कीप इन माइंड कि यू नो लीड कोड लगाना है और कॉन्टेस्ट दो सीएफ पे, एड कोडर पे। द कोडिंग पार्ट आपका हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे आपका रोल एसडी हो चाहे एसआरई हो, क्योंकि देर विल ऑलवेज बी अ रिक्वायरमेंट इन इंटरव्यूज एज वेल एज इन योर जॉब टू कोड। तो उसको मतलब एक्सप्लोर करो सारे जूनियर्स, बट कीप इन माइंड कि ये करना ही करना है, मतलब एंड हैव मतलब दैट एज ओवर एवरीवन, वो मास्टरी लाओ इस चीज में, तो इट विल हेल्प यू लॉट। बट भव्य लाइक सपोज कभी कभार ये होता है ना कि स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हो पाए सो एनी अदर वे क्योंकि कभी कभार क्या होता है हम लोग कर तो रहे बाकी डिसअपॉइंटमेंट भी आता है कि हम लोगों ने फील करा भी बट हमारे पास रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं हुआ सो एनी टिप फॉर देम। भाई रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हुआ तो रेज्यूमे पे थोड़ा काम करो, हम्म। थोड़ा प्रोजेक्ट्स करो, और जो है रेज्यूमे को थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करो। बाकी तो यार एक कंपनी थोड़ी ना है, इतनी No, कंपनीज है, यू विल बी एबल टू ग्रास्प। I'm just talking about like LinkedIn coaching क्योंकि क्या होता है कि आपने फर्स्ट स्टेप लिया ओके यू हैव गॉट सिलेक्टेड बट सेकंड स्टेप में हमारी चीज़ें क्रैक नहीं हुई तो एक डिसअपॉइंटमेंट आता है लाइक जूनियर्स के लिए कि यार इसमें हुआ नहीं अब क्या सो एनी टिप्स फ्रॉम देम। भाई द बेसिक टिप यही है कि इफ नॉट दिस देन समथिंग बेटर इज कमिंग। और मैंने देखा है सेकेंड ईयर्स के लिए और भी 3-4 जो है गुड प्रोग्राम्स निकालती हैं कंपनीज। लिंक्डइन तो शायद बस यही एक निकालती है, पर बाकी कंपनीज निकालती हैं, तो ट्राई करो। बाकी देखो कि इस पेपर में वेयर ऑल यू फेल्ड, क्या कमी रह गई थी, यू नो ट्राई टू इम्प्रोवाइज नेक्स्ट टाइम के लिए, कि पेपर में इशू था, स्क्रीनिंग नहीं निकली, या फिर रेज्यूमे में इशू था। बेसिकली जिस भी स्टेप पे आप अटक रहे हो उस पे यू नो रिकंसिडर कि वेयर एंड व्हाट ऑल जो है वेंट रॉन्ग, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग मेक चेंजेस। That's great. That's it. Uh, if you have any doubt, like my team, anyone, if any doubt, you can just ask. Like Bhavya is here, she will be helping you with all your queries and doubt sections. The chat is open for everyone. Like you can just type and we'll see. Is DSA is must? लक्ष्य
सी लिंक्डइन कोचलिन के लिए इफ यू आर टॉकिंग तो यस बिकॉज द सेकंड राउंड जो है मतलब द टेस्ट का सेकंड पार्ट इज कोडिंग तो दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो डाटा स्ट्रक्चर्स के ही आते हैं मेरे टाइम पे एक क्वेश्चन स्टैक का था और दूसरा एरेस का था तो बोथ जो हैं डीएसए टॉपिक्स पे ही थे रिवॉल्व भी वहीं हो रहे थे और अगर आप लिंक्डइन क्वेश्चन की बात ना करते यू टॉकिंग अबाउट जर्नल इंटरव्यूज या फिर कोई भी और मेंटरशिप प्रोग्राम तो यूजुअली ये देखा गया है कि इधर इन द इंटरव्यूज या फिर इन द स्क्रीनिंग टेस्ट कहीं ना कहीं इट विल बी टेस्टेड ऑफ कि आपको डाटा स्ट्रक्चर साथ आप कितना हैंडी हो और जो आप कोड कर रहे हो इज कितना क्लीन कैसे आपको यू हैव द नॉलेज और नॉट तो yes, thoda you'll always have to practice and keep a grasp of the major DSA topics. We have another questions. Let me quickly. Nukul is asking like, Didi, how to take internships and it's similar to a job interview or it's based on project. It actually constitutes both क्योंकि initially they'll be testing you on all these parameters of coding then the screening round जब होता है तो they talk heavily on your resume and your projects as to what you have done or how will you scale certain projects उसमें क्या आपने languages use करी data structures क्या use करे एल्गोरिथम्स क्या लगे थे तो जो फोन स्क्रीनिंग राउंड होता है उस पे हैवी एम्फोसिस इज गिवन ऑन प्रोजेक्ट्स तो वहाँ पे भी यूल हैव टू एक्सप्लेन आपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स कितने किए हैं उसमें क्या किया ग्रुप प्रोजेक्ट था अगर तो उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन क्या थी कई बार होता थी ग्रुप में काम हो गया जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाया तो 3-4 लोगों ने मिल के बनाया तो आपको अपना रोल वहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने उसमें फ्रंट एंड दिया बैक एंड दिया क्या किया फिर उसके अकॉर्डिंग और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो यस बट ये है कि फोन स्क्रीनिंग में यूजुअली आपका डाटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑल टेस्ट नहीं होता इट इज मोर रेज्यूमे बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड और आपसे आपका प्रीवियस वर्क बेसिकली पूछा जाता है All right, we have another question from Anil. Like, after how many days we got email of selection from the LinkedIn question? लेट मी रिकॉल मैंने जो है आई द फर्स्ट राउंड जो मेरा हैकर रैंक राउंड था वो जो है क्लियर हो गया था और मुझे मतलब आफ्टर गिविंग टेस्ट विद इन अ स्पैन ऑफ 2 days आई गॉट द कॉल कि देयर विल बी अ स्क्रीनिंग राउंड फिर द स्क्रीनिंग राउंड वाज अराउंड अ वीक लेटर और आफ्टर द स्क्रीनिंग राउंड विच वाज द लास्ट राउंड मेरे को जो एक्सेप्टेंस मेल थी आ गई थी विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज के बीच में तो मतलब ज़्यादा वेट नहीं होता द हैकर रैंक के बाद 2-3 days लगा लो और आपका मतलब आपको पता चल जाता है कि वेदर देयर बी एन नेक्स्ट राउंड और नॉट और उसके बाद अराउंड अ वीक के अंदर अंदर आपका स्क्रीनिंग राउंड हो जाता All right, we have next question. What is the last selection round? पहला तो आपका रेज्यूमे सिलेक्शन होता है देन हैकर रैंक टेस्ट होता है हैकर रैंक टेस्ट के बाद जो है लास्ट आपका स्क्रीनिंग राउंड होता है बस इसके बाद जो है रिजल्ट आ जाता है और बाकी जितने भी ये राउंड हैं सब एलिमिनेटरी नेचर होते हैं Okay, we have a question. Another Java or C++ which language should we learn? वैसे तो कोई भी लैंग्वेज में आप कोड कर सकते हो अगर आप पास प्राय मतलब बहुत बच्चों पास जो है स्कूल में पहले से कुछ सीखी होती है जैसे C++ या जावा जो है 11th 12th में बहुत बच्चे सीख लेते हैं तो उसमें कोड कर लो अगर नहीं सीखी तो फिर कोई एक सीखनी है देख लो अगर C++ आसान लग रही है तो वो सीख लो या किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो Already Sanskrit is asking like, is selection based on LinkedIn profiles? Like she has filled out the form, but they didn't ask for the resume. मैंने जब फॉर्म फिल किया था तो मेरे से तो रेज्यूमे मांगा था एंड यही होता है यूजुअली आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल प्लस आपका रेज्यूमे इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन कि दोनों जो है सही दिखते हैं उनको लिंक्डइन प्रोफाइल और रेज्यूमे तो देयर इज अ सिलेक्शन बाकी आई डोंट नो व्हाई शी वाज नॉट आस्क्ड फॉर हर रेज्यूमे पर यूजुअली यही दो क्राइटेरियाज होते हैं
मतलब मेरे टाइम पे तो यही दोनों था। Right. Ananya is asking like selection on the basis of LinkedIn profile after registration. Like, वही सेम अनन्या कि लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी ही होनी चाहिए, थोड़ी इंटरैक्टिव होनी चाहिए, जो है दिखना चाहिए वहाँ पे थोड़ा कि जो है बच्चा इज एक्टिव ऑन लिंक्डइन और कम्युनिटी है जहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। बाकी इट इज़ लिंक्डइन प्लस योर रेज्यूमे, तो बोथ इफ स्टैंड आउट गुड, तो यूजुअली यू गेट द हैकर रैंक टेस्ट मेल। all right. I don't see more queries. If anyone have, you can so ask. बाकी अगर किसी और को यू नो, अच्छा ओके, नुकुल हैज आस्क्ड समथिंग। Okay, so LinkedIn Coachland program के बाद the students get an opportunity to take the interview for the internship. So basically they'll test your DSA. They'll definitely make you code 1 or 2 questions. सेकंड, दे वुड बी एक्सपेक्टिंग कि जो आपने टेन्योर में अपने जो 4 सेक्शंस कवर किए हैं, दैट यू हैव अ गुड ग्रास्प ऑफ ऑल दोज टॉपिक्स। तो लाइक आप पे लाइनेक्स पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, नेटवर्किंग पे भी पूछेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होगा दैट यू मतलब जो आपने पढ़ा ना हो ड्यूरिंग दिस 3 मंथ्स। टॉपिक जो है ये 3 मंथ्स के आसपास अराउंड करेंगे, और जो है आपका डीएसए से कुछ 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 1-2 क्वेश्चन जो है वो कोड कराए जाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन उनकी यही होती है कि जिसने एनरोल किया है पूरा मेंटी प्रोग्राम, तो उससे जो है ही और शी मतलब शी इज एबल टू यू नो ग्रास्प द कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज। तो उन्हीं की इम्प्लीमेंटेशन थ्योरी यही सब पूछा जाता है यूजुअली। All right. We are like, Akhati, you can just take over it. That's it from my side. ग्रेट। बाकी अगर किसी और को कोई डाउट वगैरह है तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ मैसेज ऑन लिंक्डइन एंड वी कैन डेफिनेटली हैव अ चैट ओवर देयर। Yeah, right. So I don't think anyone else has any doubt left. So I'll just conclude the meeting. Thank you so much, Bhavya, for joining us today, sharing your valuable knowledge and time with us. And I'll just drop your LinkedIn ID in the community group so everyone else will connect with you there, and they'll ask any further doubt if they'll have over there with you. Right. So with that, I'll wrap up the meet, and very good night to all the people present here. Thank you so much for joining us. Thank you all. इट वाज वंडरफुल, इट वाज वंडरफुल टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू। Thank you, Avya. Thank you. Bye. ओके, बाय। Bye, everyone. Bye.